सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं एक क्लिनिकल केस डिस्कस करने वाली हूँ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के ऊपर. तो देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस. यू पॉज एंड ट्राई टू आंसर देम योरसेल्फ. तो लेट अस बिगिन नाउ. एक ग्रेविडा 2 para 1 presents to the outpatient department for routine antenatal checkup. The BP is 150 by 100 mm of mercury. What is the diagnosis? You have been asked the diagnosis. So what should be the answer? Answer should be that I will repeat the BP again after 6 hours, and depending on that I will form the diagnosis. Once the BP is normal after 6 hours, if it has come normal, then possibly she can develop hypertension later in pregnancy. So watch on the patient should be kept. Follow up every 15 days. She should be advised BP monitoring. That's it. If the BP comes out to be raised more than 140/90, then I will have to perform a certain set of investigations to form the diagnosis of preeclampsia. So those investigations are either proteinuria is present, either cerebral or visual symptoms, either renal function test is abnormal, either liver function test is abnormal, either thrombocytopenia is there. I will perform set of these investigations and try to formulate the diagnosis. If proteinuria is, I can perform a quantitative analysis. Quantitative में 0.3 gram in a 24-hour collection. If by urine dipstick, then if it is more than 2 plus. If by urine dipstick you find that it is more than 1 plus, then I will perform a urine protein to creatinine ratio. If it comes out to be more than 0.3, then I will say that proteinuria is there. If the serum creatinine levels are more than 1.2 milligram per deciliter, I will say renal is abnormal. If AST/ALT levels are almost 2 to 3 times of the baseline upper limit, then I will say that these are abnormal. If headache history is present, if blurring vision present, then cerebral visual symptoms are there. If platelet count less than 1 lakh, then that is there. So that is, if either of these are present, then it is preeclampsia. If none of these are present and the BP is elevated, that is the same after 6 hours, then it can be gestational hypertension. It can be gestational. But once the confirmatory diagnosis can be made only after 12 weeks of delivery. That's it. And if I will also try to find out whether this hypertension was present prior to 20 weeks or pre-pregnancy. If it was there, then it is chronic hypertension. So this is the way I will form the diagnosis. Is it okay? So now let's come on to the second question. The important points in history. What important points you should always take in the history of this patient you should not miss? So right from the age and parity. First thing is age and parity. How is that important? More than 35 years if she is, then more chances of chronic hypertension and preeclampsia superimposed on chronic hypertension being present are there. Parity, how is it related? Preeclampsia is more common in nulliparous, right? Then how? The second point will be history. History of hypertension in the family in the previous pregnancy, history of gestational hypertension in the previous pregnancy, all these have to be asked. What is the relation? What is the incidence, the risk of developing preeclampsia in these cases in family history? That is the question. So you must know that if there is a history of gestational hypertension in the earlier pregnancy, then there are about 70%, the incidence is 70% of developing hypertension in this pregnancy. Then how is the family history related? If there is the daughter, she is a daughter of preeclamptic mother, then 20 to 40% chance. If she is a sister of preeclamptic women, 11 to 37%. If twin sisters, then 20 to 47% chances of developing preeclampsia. So here is the correlation between this point in history, that family history is important. See, when you are an undergraduate, you are not asked these incidences.
but when you are a postgraduate, you are expected to quote the incidences also. Okay, dear students, so that's why these have been mentioned. Then you should not forget the race and ethnicity also, because Africans are more susceptible. Then the next point is medical history and points in the present pregnancy. मेडिकल हिस्ट्री में वो कंडीशंस जो हाइपरटेंशन के साथ में को एग्जिस्ट करती हैं ना, वो कंडीशंस की हिस्ट्री पूछोगे ना, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो. येस, डायबिटीज़ इज़ देयर, थायराइड डिसऑर्डर्स बोथ हाइपो एंड हाइपर, अनीमिया इज़ देयर. ओके, सो दीज हैव टू बी रूल्ड आउट. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऑल्सो, SLE एंड ऑल, these are also there. Systemic lupus erythematosus, that is SLE. Then in the present pregnancy, twins, hydramnios, H-mole. In these cases early onset hypertension मिलता है, early onset preeclampsia मिलता है. क्यों मिलता है, ये अलग क्वेश्चन है एक. ठीक है. एंड फिर स्मोकिंग. सो स्मोकिंग अपने इंडियन सिनेरियो में तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, तो स्मोकिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्री इक्लैम्शिया. अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं. एक तो ये कि अर्ली ऑनसेट प्री इक्लैम्शिया वेसिकुलर मोल में क्यों मिलता है. ठीक है, क्या बेसिस है उसका, कैन यू आंसर दिस. बेसिस ये होता है, बेसिस रिलेट्स टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्री इक्लैम्शिया. ओके, एक थ्योरी है जो ये कहती है कि प्री इक्लैम्शिया इसलिए होता है क्योंकि मदर में इम्यून मैलअडैप्टिव टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. उसका मतलब ये है कि पैटर्नली डिराइव्ड फीटल क्रोमोसोम्स जो है उनको मदर वैसे तो टॉलरेट कर लेती है, उसमें टॉलरेंस रहती है, लेकिन प्री इक्लैम्शिया में नहीं रहती है, तो वो उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करती है और वही फिर आगे जाके एंटी एंजियोजेनिक बिहेवियर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एवरीथिंग जो है वो सिचुएशन बनती है और प्री इक्लैम्शिया डेवलप हो जाता है. तो जो डबल डोज ऑफ पैटर्नली डिराइव्ड क्रोमोसोम रहता है वेसिकुलर मोल में, वो कॉज करता है ये प्री इक्लैम्शिया. ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्रूव होता है. ठीक है. अच्छा, फिर स्मोकिंग क्यों रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ प्री इक्लैम्शिया. ठीक है, तो ये होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस. अब स्मोकिंग क्यों रिड्यूस करती है प्री इक्लैम्शिया की रिस्क, वो मालूम होना चाहिए आपको. तो इसी पैथोफिजियोलॉजी में एक थ्योरी है जिसमें ये कहते हैं कि कुछ प्लेसेंटल जो माल फॉर्मेशन है, जो इम्प्रॉपर प्लेसेंटेशन होता है प्री इक्लैम्शिया में, यू नो ना, द सेकेंड वेव ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इज एबनॉर्मल. So the spiral arterioles are not properly invaded. Actually, the muscular and the endothelial layer of the spiral arterioles is replaced by the trophoblasts in the second wave of invasion. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता. तो spiral arterioles वैसे ही muscular thick बने रहते हैं. तो वो fetoplacental circulation जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वेसल्स डायलेटेड हों, प्रॉपर विलस फ्लो हो, वो नहीं हो पाता. तो फिर placental hypoperfusion, ischemia and release of several mediators. Along with that एक SFMS like soluble FMS like tyrosine kinase, ये mediator release होता है, ये एंटी एंजियोजेनिक है, इसके लेवल्स हाई हो जाते हैं और ये फिर कॉज करता है बाकी चीज़ें. तो एंडोथीलियल डिसफंक्शन कॉज करता है. ठीक है, एंटी एंजियोजेनिक है, अभी मैंने मेंशन किया. तो स्मोकिंग से FMS लाइक टायरोसिन काइनेस के लेवल्स कम होते हैं, इसीलिए स्मोकिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ प्री इक्लैम्शिया. ठीक है, तो दो क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करे. अभी तो हम सिर्फ हिस्ट्री तक पहुँचे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट. तो एग्जामिनेशंस बताएं. बिसाइड्स द वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट, पेलॉर, पीडल एडिमा, और दूसरी क्या चीज़ें हैं जिनको स्पेशल एम्फेसिस देना पड़ेगा हमको. तो पहले तो जनरल एग्जामिनेशन की बात करो. जनरल एग्जामिनेशन में प्री इक्लैम्शिया के केस में कौन सी चीज़ पे स्ट्रेस करना है, वेट पे. यस, हाइट, वेट, BMI. तो अब BMI का परसेंटेज कोरिलेशन प्री इक्लैम्शिया के साथ में आपको पता होना चाहिए, है ना. तो रिलेशनशिप बिटवीन द मैटरनल वेट एंड द रिस्क ऑफ प्री इक्लैम्शिया इज प्रोग्रेसिव. It increases from 4.3% for women with BMI less than 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जिनका BMI 35 से ज़्यादा होता है उनमें रिस्क होती है 13.3%.
ठीक है। तो एक तो वेट और BMI आप ध्यान से लोगे। फिर दूसरा थायराइड स्वेलिंग देखोगे, क्योंकि हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। फिर आप CVS में क्या देखोगे, क्योंकि ये प्री इक्लेम्शिया है तो आपको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के साइंस तो नहीं मिल रहे हैं, क्रेप्ट तो नहीं मिल रहे हैं, JVP तो नहीं बढ़ा हुआ है, डिस्निया, टैकिनिया ये सब तो नहीं है। मतलब ये तो डिपेंड करता है ना, सीवियरिटी ऑफ द प्री इक्लेम्शिया के साथ में प्रेजेंट होती हैं ये चीज़ें। सीवियर प्री इक्लेम्शिया में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी प्री इक्लेम्शिया के केस में आप एटलीस्ट कार्डियोवास्कुलर में ये तो देखो कि कहीं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कोई साइन सिम्टम तो नहीं हैं, ठीक है। फिर ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में क्या देखोगे, तो क्या एक्सपेक्टेड है, प्री इक्लेम्शिया में IUGR एक्सपेक्टेड है, तो आप फंडल हाइट लोगे, इट शुड करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। Fundal height more than the period of gestation suggests twins, hydramnios, molar pregnancy, and these are also commonly associated with hypertension. तो इसलिए fundal height कितनी important हो जाती है। अगर less than the period है तो it is suggestive of IUGR, and it may also be associated with hypertension, ठीक है। और किसके साथ एसोसिएटेड होता है IUGR? अगर प्री इक्लेम्शिया में IUGR मिल रहा है तो फिर आप और कोई कोरिलेशन बता सकते हो, बिकॉज प्री इक्लेम्शिया में तो ठीक है एक्सपेक्टेड है, लेकिन हाइपरटेंशन के साथ में IUGR तब भी मिलता है जब आप या तो बीटा ब्लॉकर्स एटेनोलॉल ले रहे हो, तब भी IUGR मिलता है। इवन लेबिटोलॉल के साथ में भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है IUGR। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ऐसा है कि वी विल फर्स्ट कन्फर्म द डायग्नोसिस। We will first confirm the diagnosis. To rule out severe hypertension, hospitalization is required. So it is at least for the initial 48 hours you will hospitalize the patient and perform certain investigations. During this period, 4-hourly BP monitoring and other investigations. Okay? So 4-hourly BP monitoring, and what are the other investigations? So complete blood count, platelet count, यूरिन एल्ब्यूमिन, यूरिन प्रोटीन। जब हॉस्पिटलाइज्ड है तब क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 4 आवरली बाय डिपस्टिक मेथड, और 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है यूरिनरी प्रोटीन का, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट, AST, ALT, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, प्रोटीन बाय क्रिएटिनिन रेशियो इन द यूरिन। फिर LDH लेवल्स। फिर LDH लेवल क्यों कराते हैं, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेल्प, उसमें लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड है, उसमें LDH कराना होता है। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम और PTTK इफ़ द प्लेटलेट काउंट इज़ अबनॉर्मल, ये भी कराना है। तो ये सब आप 48 आवर्स में करा लोगे। और अगर मान लो कि आपको ये सब नॉर्मल मिलते हैं, ठीक है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज का साइन नहीं मिलता है, प्रोटीन यूरिया भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आपने एक डायग्नोसिस बना लिया, तो फिर यू कैन डिस्चार्ज हर, शी कैन बी अलाउड टू गो होम। लेकिन अगर कोई कन्वेंस फैसिलिटी नहीं है, या वो पेशेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिजीज़, या नियर बाय एक्सेस टू हॉस्पिटल नहीं है, देन यू कैन नॉट अलाउ हर, यू हैव टू कीप हर एडमिटेड। अच्छा, then all these investigations have to be repeated once in a week or fortnightly, depending कि क्या severity है आपकी डिज़ीज़ की। एक्सेप्टिंग दो चीज़ें, एक तो यूरिन प्रोटीन डेली होना चाहिए, यूरिन एल्ब्यूमिन, और दूसरा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डेली होनी चाहिए। In addition to the maternal investigations, also you have to remember that fetal part has to be considered. तो maternal में आपने सारे एंड ऑर्गन डैमेज वाले इन्वेस्टिगेशंस बोल दिए और उनकी फ्रीक्वेंसी बताई है। और फीटल इन्वेस्टिगेशंस में क्या होते हैं, तो कब शुरू करते हैं, तो 28 से 30 वीक पे सबसे पहले हम फीटल असेसमेंट कराते हैं। फीटल असेसमेंट अल्ट्रासाउंड से कराओगे। सबसे पहले आप पेशेंट को एडवाइस करोगे डेली फीटल मूवमेंट काउंट। डेली फीटल मूवमेंट काउंट अगर आप 24 आवरली कर रहे हो तो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 1 आवर 3 टाइम्स अ डे वाले मेथड से कह रहे हो तो फिर मोर देन 3 होना चाहिए। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बायोफिजिकल प्रोफाइल, अम्बिलिकल आर्टरी एंड सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर, ये सब इन्वेस्टिगेशंस इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि कहीं IUGR तो डेवलप नहीं हो रहा है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती हैं प्री इक्लेम्शिया में।
तो ये अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर, और उसमें फिर क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है? ये जो डॉपलर में सबसे ज़्यादा पहले कौन सी रिकॉर्डिंग आती है अगर IUGR सस्पेक्ट कर रहे हो तो? CPR, इट इज़ सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो। फिर आप वीकली कराओगे NST, है ना। और अगर मान लो कि सिवेरिटी बढ़ जाती है या डॉपलर में, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में आपको जो है वो चेंजेस मिल रहे हैं, तो फिर आप क्या कराओगे, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दोगे, डेली कराने लगोगे। तो ये इस तरह से इसका मैनेजमेंट करो।